Hello, my dear students. Welcome to our English class. In our today's English class, we are going to see the question answer section of our last chapter, that is our chapter number 15. So, as you can see on the screen, first of all, what we are going to do? A. Choose the correct option to answer the questions given below. So, which of this refers to a river bed? It refers to the base of the river. Which of this is the correct phrase? Eye of a needle is the correct phrase. Which of the given words is common to a tree and an elephant? Its trunk. Then which of this a clock doesn't have? Hands, face, eyes. Okay. सो स्टूडेंट्स बी, देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैच द कॉलम। इसमें आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। ठीक है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है जो भी वर्ड्स थे, ठीक है, ये वर्ड्स स्प्लिटेड फॉर्म में। ठीक है, जैसे हेड है, हेड किसके साथ यूज हुआ है इस पूरे पोएम में? हैमर के साथ। तो आप हेड को हैमर के साथ मैच करोगे। बेड किसके साथ यूज हुआ है? रिवर के साथ। ठीक है, आई निडल के साथ यूज हुआ है। ठीक है, देन ट्रंक, ट्रंक यूज हुआ है आपका ट्री के साथ। ठीक है, चलिए, देन विंग बिल्डिंग के साथ। ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट बाकी का भी मैच द कॉलम आप पूरा करेंगे। Now students, let's see answer the questions given below. So पहला क्या है? What is the purpose of the poet as she starts the poem with some question? Students, इस poem के ना poet के बारे में पता नहीं है, इसलिए he she यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या पर्पस है इस पोएम को लिखने का, क्योंकि उन्होंने इस पूरे पोएम में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो द पर्पस ऑफ द poet as she starts the poem with some question is that, okay, the poet is the poet started asking in a very humorous way, in a very comical way. Okay, so यही पर्पस है उनका। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एक ही दिन में बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डबल मीनिंग वर्ड्स भी होते हैं जो कि अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन मीनिंग उनका सेम होता है। तो यही पर्पस है शो करने के लिए कैसे हम अपने पूरे दिन में कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, यही पर्पस है पोएट का। ठीक है, चलिए, what mood was the poet in? Gloomy, surprised, thoughtful, or something else? Give reason for your choice. So the mood of the poet of this poem is full of comedy. Okay, cheerful mood. Okay, so reason क्या है? ये पूरा का पूरा पोएम ही कॉमेडी से भरा हुआ है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, चलिए अब दूसरी देखिए, what common thing is there in all the questions that the poet asked? The common thing is there in all the questions that poet asked is a double meaning word. Okay, fourth, do you like the poem? Why or why not? Yes, we like the poem very much because this poem is full of humor, sensible topics. Okay, and the poem is also full of some comical characters. Okay, just like we are comparing eye with needle. Okay, we are comparing bed with river, etc. and etc. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये आप लोगों को भी अपने वर्ड्स में कुछ लिखना होगा समझ के। मैंने आपको चैप्टर समझाया था, ये क्वेश्चन आंसर्स भी बताया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ना अपने वर्ड्स में और अच्छे से इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अप्रिशिएटिंग द पोएम, फाइंड एंड राइट द राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें राइमिंग पेयर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो राइमिंग पेयर्स आई होप आप सब लोग फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो राइमिंग पेयर बनेगा वो बनेगा बेड और हेड का, फिर टोस हुज। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा आई, फ्लाई, परसोलर, पैरासोल, ऑल। ठीक है, तो ये बहुत सारे इस तरीके से आप राइमिंग पेयर पोएम से फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इज इट कॉमिक, सीरियस, satirical, or something else? Comment with suitable examples. So student, the tone of the poem is full of comic. Okay, because here poet used so many words having the same meaning. Okay, then personification is a figure of speech where non-living objects are given human qualities or attributes. The given poem has lot of example of personification. Write some more common examples of personification. So student, इस poem में बहुत सारे examples आपको personification के दिए गए हैं। आप क्या करोगे, कुछ और examples personification के लिखोगे। जैसे कि देखिए, एक example यहाँ पे personification का दिया हुआ है, ये रहा, देखिए, needle wink its eyes। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग और पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स को फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे।
ठीक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग में देखिए वर्क इन पेयर्स, मेक अ कलेक्शन ऑफ सम रिडल्स, आस्क एंड आंसर द रिडल्स विथ ईच अदर, यू कैन आल्सो प्रोवाइड सम हिंट इन केस ऑफ पर्टिकुलरली डिफरेंट पजल्स। आई होप आप सब लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने ये पोएम पढ़ना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग रिडल से किया था, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रुप में काम करना है, पेयर में काम करना है, और आप लोग पेयर में काम क्यों करोगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ रिडल्स का कलेक्शन बनाना है जिसको आप एक दूसरे से पूछोगे, ठीक है, और उसके आंसर के लिए आप एक दूसरे को हिंट भी दोगे, ठीक है। जैसे देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स यू कैन एक्सप्लोर, अब बहुत सारे टाइप के पजल्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कौन कौन से हैं, एनाग्राम्स, रिबस, hangman, etc. You can also give instruction for these to one another to enhance both your language and mental abilities. आपको ये क्यों करना है, क्योंकि अगर आप रिडल्स जब खेलते हो स्टूडेंट्स, तो पजल्स खेलते हो, इससे क्या होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है और आपका लैंग्वेज पे कमांड भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ लिसन टू योर टीचर एज शी रिसाइट्स द पोएम, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन योर लिसनिंग। आपकी टीचर ना इस पूरे पोएम को जब रिसाइट करेंगे, जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा था, स्टूडेंट्स आप लोग को सुनना है बहुत अच्छे से, और ये जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दिए हैं आपको कंप्लीट करना है। लाइफ स्किल्स, वी फेस मेनी इश्यूज इन आवर डेली लाइफ, समटाइम्स वी आर अनेबल टू फाइंड आंसर्स टू सम ऑफ दिस इश्यूज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज से रूबरू होते हैं, ठीक है। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। What should be done in such a scenario? तो इस सिनेरियो में क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हो आप इस पूरे सिनेरियो में? What are the steps taken to find the solution? आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए? Prepare a detailed plan using an example of a problem you have faced at any point in life. So students, आप लोगों को एक डिटेल प्लान बनाना है उस प्रॉब्लम के बारे में जो आप लोगों ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने लाइफ में फेस किया हुआ है, ठीक है। व्हाट डिड यू डू एट दैट टाइम? आप लोगों ने उस टाइम क्या किया था जब आपको ये प्रॉब्लम फेस आई थी, ठीक है। Okay, so student, this is all about our chapter number 15. Okay, in this way we have completed the exercise portion of this chapter, and as well as your book 8 is also finished here. Okay, so students, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Okay, till then dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye.